خوش آمدید. میں ہوں فرزانہ علی اور آج ہم موجود ہیں پشاور میں اور پشاور کے مختلف بازاروں کا آج ہم آپ کو چکر لگوائیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے یہ جو کچھ ہفتوں سے مہنگائی کی ایک نئی لہر آئی ہے جس نے کہ ایک عام آدمی کی زندگی مشکل بنا دی ہے اور اس کے مسائل میں مزید اضافہ کر دیا ہے. وہ عام آدمی کیا کہہ رہا ہے یہ آپ تک آج کے پروگرام میں ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے, لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ SDGs کے حوالے سے جو نئی رپورٹ 2019 کی ہمارے سامنے آئی ہے اس پر اگر نظر ڈالیں تو اوورآل اگر ہم فوڈ سیکیورٹی, ہیلتھ, سینیٹیشن, غذائیت کی کمی یا پھر ایجوکیشن ایکوالٹی کی بات کریں تو پاکستان کا جو نمبر ہے وہ 130 پر آ گیا ہے. اگر میں 2016 کی بات کروں تو پاکستان 115 نمبر پر موجود تھا اور اب گرتے گرتے ہماری سچویشن یہاں آ گئی کہ ہم 2019 میں 130 نمبر پر آئے جو رپورٹ 2019 کی ہمارے سامنے آئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب ہم فوڈ کی بات کرتے ہیں یا ہم غذائیت کی کمی کی بات کرتے ہیں یا اگر ہم یہ بات کریں کہ ہم نے غربت کو ختم کرنا ہے اور بھوک کو ختم کرنا ہے یا اس طرح کی بات کریں اور پھر یہ اعداد و شمار دیکھیں تو یقیناً ایک بہت ہی تکلیف دہ قسم کی سچویشن جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے اور یہی وہ سچویشن ہے جس کا ہمیں دن رات سامنا کرنا ہوتا ہے. ایک عام آدمی جس کی زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے, بجلی کے بل ہوں, گیس کے بل ہوں اور وہ گیس جو ہوتی نہیں ہے اور اس کے بل ہوں, پھر اور جب گیس نہیں ہوتی تو پھر LPG اور لکڑیوں کی طرف جانا پڑتا ہے, ان کی قیمتوں میں بھی دن رات اضافہ. اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ روٹی کھانا ایک عام آدمی کے لیے مشکل ہو گیا ہے کیونکہ ایک طرف بڑھتی ہوئی بے روزگاری ہے اور دوسری طرف اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ اور خصوصاً آٹے کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا یا آئل اور گھی کی قیمتوں میں. اگرچہ حکومت نے یوٹیلٹی سٹور میں مختلف آئٹمز پر جو سبسڈی ہے وہ دینے کی کوشش تو کی ہے, لیکن کیا عام آدمی اس سے مستفید ہوا ہے؟ اور اس سے پہلے جو ہم بات کرتے تھے پشاور میں یا خیبر پختونخوا حکومت کی ہم جب بات کرتے تھے تو کسان مارکیٹ, سستا بازار, اس طرح کی چیزیں بھی عوام کے لیے کھولی گئی, لیکن کیا وہ ابھی ہیں یا یہ سارا کچھ ختم ہو چکا ہے؟ کیا عام آدمی یہاں تک پہنچا؟ یہ جو سہولتیں اس کے لیے بنائی گئی اس سے وہ مستفید ہوا نہیں ہوا؟ ایک عام آدمی کیا کہتا ہے, کیا سوچتا ہے اور اب اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے, یہ ہے ہمارا آج کے پروگرام کا موضوع اور ہم آپ کو ملوائیں گے ایک عام آدمی سے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پشاور کے اشرف روڈ پر ہم موجود ہیں, ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں. جیسا کہ میں نے بات کی کہ ہم عام آدمی کی آواز آپ تک پہنچائیں گے کہ وہ آج کل کن حالات سے دوچار ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے. صحیح نہیں گزرتے, بالکل آٹا بالکل بن گئے زیادہ, سبزی بھی بن گئے زیادہ, گوڑے بھی بن گئے زیادہ, ہر چیز بھی مہنگے ہے. اچھا, میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ 2 مہینے پہلے سے لے کر یا 3 مہینے پہلے سے لے کر اور آج کی تاریخ تک آٹا کتنے روپے مہنگا ہوا ہے؟ کم از کم 100 روپے مہنگا ہو گیا. 3 مہینے میں 100 روپے؟ 100 روپے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ نہیں زیادہ ہے؟ بہت 300-400 روپے مہنگا ہو گیا. اچھا, آپ خود خریدتے ہیں ظاہر ہے اپنے گھر کے لیے؟ ہاں, کل بھی میں لے گیا ہوں. اچھا, سادہ آٹا 1100 روپے تھے. سادہ آٹا 1100 روپے, کیا 20 کلو کا؟ 20 کلو کا. تو 3 مہینے پہلے آپ نے کتنے کا خریدا تھا؟ 700 750. اچھا, ٹھیک ہے, آپ نہ رہے. یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ کہتے مہنگائی ہے بس. اچھا ہاں, اچھا, لیکن ہمارے جو صوبائی وزیر اطلاعات ہیں یا صوبائی حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں, ہم نے تو ایسا نہیں دیا ہوا. اگر میں آپ کو ان کے فگر بتاؤں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 85 کلو کی بوری 4600 روپے میں ہے اور 20 کلو کا تھیلا 800 روپے میں ہے. ہم مارکیٹ میں کھڑے ہیں, سچویشن کیا ہے؟ اور جو سرخ اڑے ہیں نا وہ کمزور, جو 800 روپے آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ بالکل نہیں ملتے. وہ کمزور جو ہے 930 پر وہ ملتے ہیں ادھر سے. ہم تو بیچتے 1000 پر تک ہم بیچتے, ہر چاہتے. نام کیا ہے آپ کا؟ ممتاز خان ولد عالم زیب.
मुमताज साहब, क्या सिचुएशन है कि एक आम आदमी की ज़िंदगी आसान है, मुश्किल है, कहाँ तक पहुँची है? ज़िंदगी तो आम लोगों की हमेशा से मुश्किल चली आ रही है। आसानी तो की तवक्कुआत तो हो सकती है, लेकिन अभी तक कुछ जो है ना मंजर पे नहीं आ रहा। पस मंज़र कुछ भी हो रहा हो तो उसका तो हमें पता नहीं। आटा कैसे मिल रहा है आपको मार्केट में? आटा महंगा हो रहा है ना, आहिस्ता आहिस्ता महंगा हो रहा है। इसको ज़रा ना अर्ज़ान होना चाहिए, रेट ज़रा कम रखना चाहिए, जो आवाम की बस में और उसकी पहुंच में हो और आवाम का उस तक रसाई हो। आप करते क्या हैं? मैं तो जो है ना ज़मींदारी का काम करता हूँ, लेकिन उधर जो है ना पहले हुकूमत जो है ना वो सब्सिडी देते थे यूरिया पे, फास्फोरस खादों पे, पोटाश खादों पे, तो वो सब्सिडी भी हुकूमत नहीं दे रही है, जिसकी वजह से ना ज़मींदारों की भी मसाल है। फिर वहाँ पे जो गले पैदा होता है, गला जो है ना वो फिर मिलों में आता है, मिलों में फिस कर जो है ना इधर बोरियों में भर दिया जाता है। तो ये सारे प्रोसेस से गुजर कर वो खुद ब खुद महंगा हो जाता है। नाम क्या है आपका? नाम सैयद अहमद शाह जी। सैयद अहमद शाह, ये बताइए कि करते क्या हैं आप? मैडम हमारी स्वीट्स की शॉप थी जी हसने, लेकिन वो इतनी ज़्यादा महंगाई है। वो अभी भाई बात कर रहे थे, ये फ़ाइन हमारे वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफ़ज़ई की अजीब ही मंतक है कि फ़ाइन आटा आप खाएंगे पेट ख़राब होगा और आप लोकल खाएं। वो बस आराम से कह के लोग मर जाएं, बस उनका मैं तो यही कहूँगा जी। उन्होंने जो है उसकी आपने बयान को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा मेरा मतलब ये नहीं था, मैं ये कह रहा था कि डॉक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे बात कर रहा था कि वो कह रहे हैं कि फाइन आटा मैदे के लिए ठीक नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि फाइन जरा महंगा है, वो कह रहे थे मकामी खाएं। हाँ जी, वो मैडम मेरा ख्याल 1100 रुपए का लोकल 850 का है तकरीबन, लेकिन वो मिक्स करके हर कोई यूज़ करता है। खाली मतलब मकामी नहीं खा सकते, खाली मकामी खाएं बाज़ पसंद करते हैं, बाज़ नहीं। मिक्स करके वो रेड और वाइट को मिक्स करके फ़ाइन मेरा ख्याल 1100 रुपए में मिल रहा है, और ये जो अपना मकामी है ये 850 है। आपने ये क्यों कहा कि मिठाई की दुकान थी? मैडम वो इतने हैवी महंगाई आ चुकी है, तो मैं कह रहा हूँ हर कोई बस अपनी हया में ही जी रहा है। वो जिस तरह पहले मैदे की बोरी थी 4000, फिर 4.5, 5, अब 5,500, और मतलब वो है कि कॉस्टली तो आ रहा है लेकिन वो बचत भी बच रही। तो इससे बेहतर ये है कि वो फिर वाइंड अप ही करके कोई और काम, हालांकि अब तक करते नहीं हैं, लेकिन हालांकि मैंने खुद पीटीआई हमारे ये अपने शौकत अली साहब को इनको वोट डाली है, लेकिन हकीकत पूछें तो पछता ही रहे हैं कि क्यों डाली है जी। बता क्यों रहे हैं? मतलब आपके सामने महंगाई की पोजीशन है जी। अच्छा, महंगाई कितनी बढ़ी है आप कहते हो? महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पेट्रोल हर एक चीज़ बहुत महंगी हो गई। गरीब का रहना इस दुनिया में बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा। जी। वैसे ये हुकूमत जो है ना, जो खान साहब की हुकूमत है, वो नौजवानों की हुकूमत है, तो आपको कितना कोई रिलीफ मिला है? रिलीफ तो कुछ भी नहीं मिला, बस ऐसे ही बस आते जाते हैं जी। बस अभी टमाटर भी इतने महंगे हो गए, 150 रुपए के टमाटर हो गए। गरीब क्या करेगा? सौदा खुद खरीदते हो? मैं अबू के साथ जाता हूँ तो मंडी, तो सब कुछ पता है, सब कुछ बस महंगा हो गया। गरीब का बहुत मसला बनेगा, जिसका रोज़गार नहीं है। जिनके पास है उनका तो कुछ नहीं है, उनको तो आराम से आते हैं, और जिसका नहीं है उसका जीना मुश्किल हो गया। हुकूमत कह रही है 800 का 20 किलो का थैला जो है वो 800 रुपए में मिल रहा है। आपको कहते हो ऐसा नहीं है? हुकूमत की किताबों में बिल्कुल 800 रुपए में मिल रहा है। हुकूमत इस हिसाब से गंदम जो है ना फ्लोर मिलों को दे रही है। आगे हुकूमत तो अपना फैसला फ्लोर मिल पर इम्प्लीमेंट कराए ना, फ्लोर मिल वाले के पास जाए, पूछे कि आपको हमने जो गंदम दिए हुए ना, ये 1375 रुपए 40 किलोग्राम से जो गंदम दिया है ना, आपका वो 800 रुपए आटा किधर बेच रहे हैं? अब तो ये अवाम का तो काम नहीं, ये तो हुकूमत का काम है कि जाकर मिलों से पूछे। पंजाब वैसे उन्होंने ना कमेटियां बना दी हैं इन सारी चीज़ों को देखने के लिए। जो आप कह रहे हैं कि ये हुकूमत, मैं तो वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकती जो आपने कहा, हुकूमत अहल मेरे ख्याल में है और वो काम करने की कोशिश भी कर रही है। उन्होंने कमेटियां बना दी हैं जो इस सारी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगी। मैडम आप मुझे बताइए हुकूमत ने किस चीज़ की कमेटी बनाई हुई, किस चीज़ के लिए कमेटी बनाई हुई? अभी यही जो आटे का मसला है ना, इस पर नजर रखने के लिए उन्होंने कमेटियां बना दी है। वो भी इसी तरह बंदा होगा कि आपका एजुकेशन का मिनिस्ट्री एक मैट्रिकुलेट बंदा चला रहा है ना, इसी तरह आटे के लिए भी उसने कोई ऐसा बंदा ढूंढा होगा जिसने जो है ना कभी जिंदगी में आटा घर के लिए न लिया हो, ऐसा कोई बंदा होगा? ऐसा
कोई बंदा हो सकता है कि जिसने घर के लिए कभी आटा ना लिया हो? यार इस हुकूमत में जो है ना कोई एजुकेशन का मिनिस्टर मैट्रिकुलेट हो सकता है, तो ये भी मुमकिन है। हाँ आप इनसे इत्तेफाक करते हैं, कोई बात करेगा आप इसे इत्तेफाक करते हाँ करते हैं, इसलिए करते हैं कि वजीर खजाना कह रहे कि 17 रुपए किलो टमाटर का रेट है। एक बंदे को टमाटर का हैं? पता, वो पुरानी बात हो गई ना। मिसाल की बात करता हूँ ना, कि मिसाल के तौर उसको टमाटर का रेट का पता नहीं, उसको आटे का रेट का पता नहीं, और कह रहे हैं कि जी आटे मिसाल के तौर 800 पे बेचो। क्या समझते हैं, महंगाई हो गई है, क्या खा रहे हैं आप? मैं तो हलवा खा रहा हूँ, महंगाई तो इतनी ज्यादा है कि ये गरीब आवाम दे पास रोटी खाने को पैसे नहीं और आप हलवा हलवा खा रहा हूँ, मजबूरी से गुजारा कर रहा हूँ। 10 रुपए का हलवा है, अभी भी ये पड़ा हुआ था, इधर से ले लिया, बंदे ने दे दिया। मैंने कहा देख लूँ क्या हो रहा है ये इधर, लेकिन इसमें बस महंगाई बहुत ज्यादा है, अच्छा काबू से बाहर 10 रुपए का हलवा लिया आप? 10 रुपए का देखो जी एक नवाला है, इससे क्या होता है, लेकिन बस गरीब आदमी इस पे भी तो गुजारा। आप ये दोपहर की रोटी के तौर पर खा रहे हैं? नहीं दोपहर की रोटी तो हाँ दोपहर की रोटी के तौर पे खा रहा हूँ जी, आपने तो अभी तक दोपहर की रोटी ही नहीं खाई है जी, अच्छा कसम से। तो क्या करते क्या है आप? करते क्या है, केबल का काम करता हूँ, 150 रुपए महीना बिल लेता हूँ, लेकिन वो भी लोग नहीं देते महंगाई के हाथों। अच्छा हाँ कल आना परसों आना, कल आना परसों आना, कह रहे इतनी महंगाई हो गई तो क्या करें, मजबूर लोग क्या करें, गरीब फिर आपका गुजारा कैसे होता है? बस गुजारा कुछ ना कुछ सरकट चला लेते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर लेते हैं, क्या करें, खुदकुशी कर लें, एक दूसरे को गिरवान पकड़ लें, क्या करें, गरीब बंदा क्या करे। ये तो इमरान खान को चाहिए, सरमाएदार लोगों को चाहिए कि गरीब आवाम का सोचें। वैसे खान साहब गरीब आवाम का तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। देखें उन्होंने एहसास प्रोग्राम शुरू किया, उन्होंने यूथ के लिए प्रोग्राम शुरू किए, उन्होंने शेल्टर्स बनाए, कोशिश तो कर रहे हैं। कोशिश तो कर रहे हैं, उन लोगों को कर रहे हैं जिसकी सिफारिश हो, जिसके पीछे हाथ के पीछे हो। और इस बंदे का क्या बनेगा, इस बंदे का क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, ये भी गरीब बंदा है, ये भी गरीब बंदा है, सारे इधर बैठे रहते हैं मजदूर। क्या किया उसने, कुछ भी नहीं है, कुछ काम नहीं है। महंगाई इतनी महंगाई हो गई, अगर ये मजदूर है 500-600 रुपए ले रहे तो उसको दुकानदार जो दे रहे हैं कह रहे नहीं यार 200 रुपए ले लो, क्योंकि पीछे से कह रहे इतना महंगा आ रहा है, टैक्स आ रहे हैं, वो आ रहे हैं सारा, तो क्या करे वो गरीब बंदा। जो बोरियां उठाते हैं, ये बोरिया जो उठाता है, तो सोचो मुश्किल हो गया, जीना तो बड़ा मुश्किल कर दिया इमरान खान ने तो जीना बड़ा मुश्किल कर दिया गरीब लोगों का। उसने तो भाइयों को अलग कर दिया घरों में। वो कैसे? वो ऐसे कि बिजली की मीटर में देखें ज्यादा, गैस के बिलों में ज्यादा देखें, इसी पे लांछा ज्यादातर होता है। लोग खर्चे पूरे नहीं कर सकते, भाई आपस में बेइत्तेफाक हो गए, अगर माँ बहन से जुदा हो रही, भाई से जुदा हो रहा है। अब इसमें तो इमरान खान का कसूर नहीं है भाई, कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आपने देखा होगा कि यार 2 महीने पहले बिलों में देखो, अभी देखो बिलों में 2 महीने हो गए, उसमें रियायत लिखी होती है। ये रियायत का क्या चक्कर है, हमने तो बिल जमा कराए हुए हैं, हमें कौन सी रियायत मिल रही है? ये रियायत उल्टा जमा करा रहे हैं, डबल बिल जमा करा रहे हैं। अगर 1100 का बिल है, 1100 रुपये पर टैक्स आएगा। वैसे आपने हलवा खाया है, आपका मुंह तो मीठा होना चाहिए। मुंह तो मीठा है, लेकिन मैं तो गरीब आवाम के साथ सोच रहा हूँ ना, इधर मैंने देखा, क्योंकि हमें 20 साल इधर हो गए हैं, बस सबर शुक्र कर रहे हैं, आवाम को देख रहे हैं, क्या करें, क्या कर सकते हैं। सारा आवाम खुदकुशी करना हुआ, खपा है बहुत। पाकिस्तान आवाम से सारा खपा हुए इमरान खान से। सारे अवाम आप कहते हो इमरान खान से खफा हैं? खपा है हुकूमत बहुत सारे लोग खुश भी हैं ना। देखिए खैबर पख्तूनख्वा के लोग कितने खुश थे कि उन्होंने उन्हें फिर से मुंतखब करवाया, उनको दोबारा हुकूमत दी यहाँ, तो फिर वो तो खुश थे ना। नवाज शरीफ बादशाही है, जेवल हक बादशाही है बहुत। इमरान खान बहुत सख्ती आसमान सारा खबर है गई, आसमान सारा खबर है गई, सब्जी अरे उशे टोल आवाम दबा दे, गर्क दे। वो उर्दू चूंकि सही नहीं बोल सकते, तो उनका कहना है कि खान साहब की वजह से जो लोग हैं, एक आम आदमी है, वो बहुत मुश्किलात का शिकार है। और उन्होंने तो ये तक कह दिया कि लोग अब खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए हैं। उन्हें लगता था कि नवाज शरीफ की हुकूमत जो थी वो बेहतर थी। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा में खड़े हैं वो लोग जिन्होंने अपनी रिवायात को तोड़कर, पिछले कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़कर दोबारा से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एक और चांस दिया और खान साहब को वज़ीर आज़म बनाया। वो अब इस किस्म की बातें कर रहे हैं। मुश्किलात हैं, ओवरऑल बहुत ज़्यादा महंगाई है, इसलिए लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा तंग हैं। यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक से वापस आएंगे तो किसी और जगह पर आपसे बात करेंगे, कुछ और लोगों से आपकी बात करवाएंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। अब हम मौजूद हैं पर्दाबाग के इलाके में। ये भी पेशावर का इलाका है और जहाँ पर मैं ये खड़ी हूँ ये वो एरिया है। अगर आपको याद हो तो मीडिया पर हमने कुछ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें चलाई थी कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव लिया है और किसानों को फ़ायदा देने के लिए और उनकी जो चीज़ें हैं सब्ज़ी वगैरह उसको डायरेक्ट बल्कि यूँ कहें कि मिडल मैन को ख़त्म करने के लिए, किसानों का माल डायरेक्ट ख़रीदार तक पहुँचाने के लिए किसान सस्ता मार्केट जो है वो यहाँ पे शुरू की थी। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा और चंद ही हफ्तों में चीज़ जो है वो मंजर से गायब हो गई है। कुछ लोग बैठे हैं और वो धूप सेंक रहे हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। बाबा अगर आप ज़रा मेरे साथ खड़े हो जाएं, और मैं आपको तकलीफ़ तो दे रही हूँ लेकिन बात अगर हम करें, ये आप जहाँ पे बैठे धूप सेंक रहे हैं, यहाँ तो किसान सस्ता मार्केट लगाई थी हुकूमत ने, वो किधर गई? देखो पहला तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ सस्ता मार्केट लगा हुआ है, बोर्ड लगे हुए, सिर्फ नाम सस्ता दिए है, सब्जी सस्ता नहीं था। और ये सामने सब्जी मंडी है, इससे यहाँ सब्जी महंगा था, लोग आता था और वापस चला आता था। तो यहाँ जितना दुकानदार था 2 दिन 3 दिन यहाँ रहा और फिर भाग गया, सब भाग गया। बाजार चलता नहीं है, नाम सस्ता दिए लेकिन सब्जी महंगा था। और वो जो किसान आते थे दूर दराज जगहों से और आके अपना माल यहाँ बेचते थे, उनको भी कोई फायदा नहीं? एक किसान भी नहीं आए थे। ये वो कौन लोग थे? वो सब्जी वाला थे, बस यहाँ खरीदता था ये इनकलाब मंडी में और यहाँ लाता थे। सब किसान तो कोई भी नहीं आई, न आता है ना किसान है न किसान है। यहाँ सिर्फ इधर टेंट लगे हुए हैं 1 हफ्ते के लिए और हफ्ते के लिए, हफ्ते के बाद वो सब भाग गया। क्योंकि वो टेंट और वो बोर्ड शोर्ड वो कहाँ गए? वो भी ले गया, हुकूमत ने ले गया और सब सब्जी वाला ने नुकसान उठाना पड़ा। हाँ बिल्कुल, सब दुकानदार किस लिए इसलिए भागे कि सब ने नुकसान उठाया। हाँ जी, हाँ जी। आप क्या कहेंगे? आप भी इधर ही के रहने वाले हैं, आप क्या कहेंगे कि ये क्या हुआ भाई? इतना अच्छा इनिशिएटिव था हुकूमत का और बजाय इसके को इसको कामयाब बनाया जाता, ये तो नाकाम कर दिया। इधर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा सामने दुकान है और इधर जो ये सस्ता बाज़ार, इसका खाली नाम था सस्ता बाज़ार का। इधर का जो रेडियो वाला था ये ज़बरदस्ती इधर ला के इधर बस खाली शोशा बना के तस्वीरें लेके फिर वापस भाग जाता था। इधर किसान एक भी नहीं आता था, सब रेडियो वाला था। उधर टमाटर जो 100 रुपये किलो मिलता था, इधर 120 रेट था। वैसे किसान का नाम इसको दिया था। सब सब्ज़ी इधर महंगा मिलता था, इसलिए ये नहीं चला, बस वो भी भाग गए। और जो इधर इंतज़ामिया था सामान तो हुकूमत ने वापस ले। जुल्म का दौर आ गया है, हर चाय महंगी है, तब्दील बात है ना। बाबा जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ। आरिफ साहब, ये जो आप कह रहे हो ना कि कोई भी हुकूमत आवाम को नहीं देती, तो फिर इसका मतलब है खान साहब का भी बेचारे का कसूर तो ना हुआ? तो खान साहब ने तेरा वादा किया यार चोरों को पकड़ूंगा, ये पैसा लाऊंगा गरीबों को, किधर तकरीब तो और यार करो हो गया और चोरों को छोड़ दिया है। आवाम हर यारा बोझ आ गया हर चीज़ का। वो कहते हैं 3-4 साल में मामला ठीक हो जाए। उसने अव्वल बोला 3 महीने, फिर बोला 2 साल। अगर ये इमरान खान 3 साल भी यारा तक सही ले आए ना, तब मैं इसका पुत्र हो जाऊंगा। आप बाबा से इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल, मैं बाबा से इत्तेफाक करता हूँ। क्यों? तो नौजवान है, जान है तहरीक इंसाफ की, कैसे? मेरे तहरीक इंसाफ से कोई वो वास्ता नहीं है, कोई एफिलिएशन नहीं है। लेकिन एफिलिएशन ना भी हो, एक नौजवान के साथ उनका मतलब जो एक ताल्लुक है वो तो है। बिल्कुल, जवानों का ताल्लुक था पीटीआई से और लोग वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक चेंज आएगा, इनकलाब आएगा। लेकिन हमारा जो शौकत यूसुफ जई साहब है ना, सेक्रेटरी जो इत्तलात है हमारा, इन्फॉर्मेशन जो आप ब्रॉडकास्टिंग वाला, तो वो कह रहे कि आप जो है ना फाइन आटा इस्तेमाल न करे, आप जो घरेलू जो वो है जो खेतों में होते वो इस्तेमाल करें लोकल। तो लोग कहते हैं कि तो पीटीआई क्या फरमान कसकर है, रोज़ाना एक न एक लतीफ़ा लाता है। कभी कहता है कि दही इस्तेमाल करो,
और वो टमाटर इस्तेमाल न करो। ये तो मजाक कर रहे हैं शौकत यूसुफजई साहब। आवाम को आप बेवकूफ़ बनाए, मजीद आप बेवकूफ़ न बनाए। कसम खुदा की लोग इतने तंग है कि खुदकुशी करने पर तुले हुए। कब ऐसे नहीं कहे। नहीं लोग तंग है ना। जब भी इमरान खान साहब कहते हैं कि कोई पे के जा रहा है तो लोग डरते हैं कि आपने घबरा नहीं, तो कहते हैं थोड़ा घबरा ले। वो कहते हैं घबरा नहीं आपने, तो लोग डरते हैं कि अब घबराने की नौबत आ गई है। क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि जब खान साहब ये कहें कि घबराना नहीं है तो इसका मतलब है घबराने का वक्त आ गया। घबराने का वक्त आ गया। क्यों चीजें जो है ना महंगी हो जाती है। ये गरीब लोग ये दिहाड़ी करते हैं, तो ये पैसे कहाँ से लाएंगे। बाबा जी आपने मुझे आवाज दी, बड़े खफा से दिखाई दे रहे हैं, क्या मसला है? बिल्कुल हम खफा इसलिए हैं कि हमें 1200 रुपए का एक तेला मिलता है, 1200 आटे का, और घी 200-250 रुपए का 1 किलो है। 1 किलो से हम कौन सा गुजारा कर सकेंगे? मतलब है कि ये महंगाई गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है इस महंगाई ने। हाँ, हमने कभी अपनी उम्र में, मेरा 70-75 साल उम्र है, ऐसी महंगाई कभी नहीं देखी। अच्छा, कभी किसी भी दौर में आपने इतनी महंगाई नहीं देखी? इतनी महंगाई कभी नहीं देखी 75 साल की उम्र में। अब ये कैसा हुकूमत है? हमने इनको वोट इसलिए दिया है, इसलिए तो नहीं दिया है जनाब कि गरीब का कुछ बने। मालदार का तो 2 करोड़ का नुकसान हो जाए वो बर्दाश्त कर सकता है, हमें 10,000 का नुकसान भी हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, और ना अपने बच्चों के लिए रोटी दे सकते हैं सही हालत में। ये कैसी हुकूमत? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं, 5। तो करते क्या हैं आप? हम तो ये मजदूरी करते हैं। इस मजदूरी के लिए भी हमको कोई नहीं छोड़ता। टैक्स दो, फलाना टैक्स दो, जिंदा टैक्स दो, मुर्दा टैक्स दो, हर रोज का टैक्स, बिजली में टैक्स देते हैं। यहाँ हम गरीब आदमी 500 रुपए की दिहाड़ी पर भी टैक्स लगा हुआ है। ये जो रिक्शे वाले हैं इनके साथ आप काम करते हो? ये इधर हम काम करते हैं, मैं इनके साथ मजदूर हूँ। 500 रुपये में मैं क्या करूँ? 5 बच्चे हैं मेरे, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैं क्या काम करूँ? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो या ओवरऑल तहरीक इंसाफ की मरकज में हुकूमत हो, तहरीक इंसाफ के लिए यूथ तो एक रीढ़ की हड्डी की तरह था। आप भी नौजवान हो, आप तो बड़े खफा दिखाई दे रहे हो। हम इसके साथ कभी नहीं देंगे, इसलिए कि उसकी जो हमने कारकर्दगी देखी ना, आइंदा कोई भी इनका साथ नहीं देगा। आप भी यही समझते हैं? नहीं जी, ये बात इस तरह है कि इमरान खान साहब जो है ना अच्छे तरीके से चल रहे हैं, लेकिन उनकी ये 1-2-3 बातें हैं ना कि वो कह रहे थे कि मैं ये करप्शन को ये करूँगा वो करूँगा, इसी और ये जो अभी एक बिल पेश हुआ है ये 50 करोड़ का, कि अगर 50 करोड़ करप्शन करे बंदा तो उसका वो नहीं होगा, ये जो नेब वालों की। तो ये बात है ना कि हमने इसलिए वोट दिया हुआ था। मैं बेसिकली फैन हूँ उनका, इमरान खान का, लेकिन बात इस तरह है कि वो अपनी वो पता नहीं कि वो उसको क्या हुआ है कि वो अपनी बातों पे कायम नहीं हुआ है अभी तक। आप क्या कहना चाहते हैं? बात ये, पाकिस्तान एक दफ़ा अंग्रेज़ से आज़ाद हो गए, दूसरे अंग्रेज़ के हाथ में है, इसमें किसी का भी आवाज़ नहीं पहुंचता है। आप लोग भी थक जाते हैं, हम भी थक जाते हैं, इन बातों से तो कोई फायदा नहीं है। ये लड़का आज भी ये बिकवा रहा है, ये समोसे, कल भी बिकवाएगा और आइंदा इसकी बात भी करेगा, इसका कोई फायदा नहीं है। पहले आप लोग इस तरह मीडिया वाला करें, पाकिस्तान को थोड़ा सा आज़ाद तो कर लो ना। किससे आज़ाद करवाएं? किससे? किसने कैद किया हुआ है? किसके पास है तुम्हें पता नहीं है? मुझसे निकलवाना चाहते हो? आपको ये पता नहीं है कि किसके पास है? अच्छा, तो उससे कोई फर्क पड़ता है महंगाई पर कि ये किसके पास है? कुछ भी पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है? दाउला साहब जो है ना एक जबरदस्त सा सवाल छोड़ के चले गए हैं, और वो कह रहे हैं कि आप जाके पता करें कि महंगाई की असल वजह क्या है, और उन्हें लगता है महंगाई की असल वजह ये है कि हम अभी भी कैद में हैं। किसकी कैद में है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले मुख्तलिफ बाज़ारों में पेशावर के हम मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहे थे, बल्कि एक आम आदमी की बात कर रहे थे कि उसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई है या आसान हो गई है, महंगाई ज़्यादा है कम है, कैसी गुजर रही है एक आम आदमी की ज़िंदगी। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीस मोहम्मद है। तो कैसी गुजर रही है एक आम आदमी की ज़िंदगी?
عام آدمی کی زندگی ابھی مشکل سے گزر رہی ہے. ایک ہفتہ پہلے سبزیوں کا جو ہے ایک ریٹ تھا, ابھی دوسرا ہو گیا ہے. ایک ہفتہ پہلے سبزیاں جو تھی وہ سستی تھی تھوڑی, ابھی ایک ہفتہ گزر گئے تو سبزیوں کی ریٹ اچانک اتنی بڑھ گئی ہے کہ سمجھ نہیں رہی کیا ہو گیا ہے. سردی یا بارشوں کی زیادہ مہنگا ہو گیا. ٹماٹر ہفتہ پہلے جو ہے وہ 100 روپے میں تھا, ابھی آج 150 میں ہے. سبزیاں اور جو تھی وہ 60 اور 70 کلو میں تھی تو وہ آج 120 اور 100 روپے میں مل رہی ہے. ہر سبزی جو ہے وہ 40-50 روپے کلو بڑھ گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس ساری مہنگائی کی وجہ کیا ہے؟ مہنگائی کی وجہ یہی ہے کہ حکومت کی مطلب ہے کہ آپ نے بھی جیب بھری ہے, 2 سال بعد دوسرا ہے اس نے بھری ہے, 3 سال بعد تیسرا ہے تو اس نے بھری ہے. ابھی یہ حکومت تو نظام کی بہتری کی بات کر رہی ہے. بات کرنے سے نہیں بنتی ہے, کروانی سے بنتی ہے. کرنے میں تو میں کہوں گا کہ میں یہ پاکستان ایک دم مطلب ہے زمین سے آسمان پہ اٹھا دوں گا, مگر کرنا جو ہے نا کرنا. ہم لوگ خوش تھے کس دور میں؟ ایوب کے دور میں ہماری 32 روپے تنخواہ تھی, 32 روپے مہینہ تنخواہ تھی ہماری اور ہمارا گزارا ہوتا تھا. جنرل ضیاء کے دور میں ہم 12 روپے دیہڑی کماتا تھا, ہمارا گزارا ہوتا تھا. مشرف کی 3 سال جو تھی وہ اب بڑی بہترین تھی. جب سے سیاست دان آئے ہمارے ملک میں قوم کا بیڑا غرق ہو گیا. آپ کو لگتا ہے کہ جمہوری حکومت آپ کے لیے ٹھیک نہیں؟ بالکل عذاب ہے, عذاب ہے, عذاب عذاب عذاب. کیوں کہ جمہوریت میں آپ نے اگر 10 کروڑ لگا دیا الیکشن کے اوپر تو وہ 10 کروڑ روپے آپ نے کہاں سے پورا کرنا ہے؟ اچھا آپ مہنگائی ہے؟ مہنگائی بہت زیادہ ہے. مہنگائی کی وجہ سے ہم بہت زیادہ تنگ تھا. جو چیز لیتے 50 روپے کا چیز 200-300 میں ملتے تو ہم بہت زیادہ تنگ ہے. سارے لوگ روتے. چینی 3600 روپے کلو. تو اس کی مہنگائی کی وجہ سے ہر بندہ روتے. ہم پہلے خوش ہوتے ہیں عمران خان وزیر اعظم بن گیا تو اس نے اتنا مہنگائی کیا تھا چاہے ہر بندہ بچہ روتے ہیں. تو اس لیے ہم سارے پریشان تھے بابی, بہت پریشان. کچھ کہنا چاہتی ہے اماں, کیا کہنا چاہتی ہے؟ ہاں برطانیوں کا تباہ برباد دیکھو پیالے نشو آگشتے سبزی نشو آگشتے وہ لوگ انہوں بچی بلوچو خدمت انہوں نشتا ہی سب نشتا دا صدی کولی دی دا دیدی نا پاسا باسا. ہاں گرانی دیر زیاد شو دیر زیاد شو دا چیرتا زی اس دا چیرتا وڑے دا پا 200 دا منگا یقنین ملچو دا بتکی کی تاکور کے گیس نشتا نا بچے سم کرائے کور دے کرائی کور سوگشتا گٹلو والا لکورم نشتا کرائی کورم دے خدا کا کئی زابل میں دیالی کئی سار وقتی دی ابلا دا سے یاسر آپری وطل ما وطای مطای عمران خان نہ والے خفا ہے خفا ہے مگانا ایزم نشتا تم دپالا تم نشتا ڈاکٹر طبیب نشتا پیسے لگی دونوں دوایانی لکھی راکا ہم نشتا لاتا. آپ کہہ رہی ہو ڈاکٹر کے لیے فیس تک نہیں ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے. اماں جو ہے کیا نام ہے اماں؟ سانم سد ہے. میدا خراب ہے. اماں کہہ رہی ہیں کہ میرا میدا خراب ہے, وہ رو رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. شالم سے آئی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ بہت زیادہ انفیکٹ خفا ہیں اور ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ کدھر جایا جائے. ناظرین اس وقت ہم سرور مارکیٹ میں پہنچ چکے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو مختلف قسم کی دالیں, چاول, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نظر آئیں گی. ہمارے ساتھ ان کو بیچنے والے بھی موجود ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد دانیال. محمد دانیال, یہ جو چیزیں ہیں عوام کہہ رہی ہے کہ اب تو ہم دال بھی نہیں کھا سکتے, تو یہ پچھلے 1-8 مہینے میں 2-3 مہینے میں اگر ہم کہیں تو کتنا فرق آیا ہے ان چیزوں کی قیمتوں میں؟ تقریباً 40 سے 45% فرق آ گئے. پرسنٹ فرق آ گیا. اچھا, مثال کے طور پر یہ سرخ لوبیا ہے, یہ پہلے کتنے تھا اور اب کیسے ہے؟ یہ تقریباً 6,800 روپے پہ چلتا تھا, 7,000 روپے پہ چلتا تھا, ابھی تقریباً 8,500 روپے کلو تقریباً پہلے 140-150 پہ تھا, ابھی 170 روپے پہ ہو گیا. اچھا, یہ کتنا 1 مہینے میں فرق پڑا ہے, 2 مہینے میں؟ یہ تقریباً 45 دنوں میں فرق پڑا ہے. 40-45 دنوں میں 170 پر پہنچ گیا. اور یہ چنے کی دال جو ہے یہ کتنے کی تھی اور اب کتنے کی ہے؟ یہ 130 روپے کی ابھی ہے. پہلے کتنے کی تھی؟ یہ تقریباً 120-110 پہ تھی. اچھا, اور یہ جو یہ والی دال ہے
ये 90 रुपए की। और पहले कितने की थी? पहले तकरीबन 70-75 रुपए भी थी। और सेम ये चना भी इसी हाँ, ये हर एक चीज़ में तकरीबन काफ़ी फ़र्क आ गया, 40 से 45% फ़र्क आ गया। अच्छा, तो ये क्या वजह है इसकी? बुनियादी तौर पर क्या देख रहे हैं आप? बस हम क्या कह सकते हैं, हर एक चीज़ महंगी दिन पर दिन हो रही है। घी की कीमतों में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है, पेट्रोल की कीमतों में, जिसके साथ अगर गाड़ी वाले साथ बात करें तो वो आसान बहाना करता है कि पेट्रोल महंगा है तो हम इतने पे जाएंगे, तो हर एक चीज़ महंगी है। तो माल कहाँ से आता है? ये तो मुख्तलिफ पंजाब से भी आता है और अफ़गानिस्तान के रास्तों से भी आता है। आपको लगता है कि जो ताजिर है, छोटा ताजिर, उसके लिए भी मुश्किल हो गई है? असल में हम यहाँ बेचते हैं तो जब हमसे कोई परचेज़ करने के लिए आता है तो हम उसको रेट बोलते हैं तो वो ऐसे ही चला जाता है। अच्छा। ऐसे ही चला जाता है, वो कहता है कि पिछले महीने मुझे ये रेट लाया था कि इस मंथ अभी आए तो ये रेट है, तो इसलिए हमारा कारोबार खुद ब खुद ख़राब हो गया है। जो मार्केट का लेवल महंगा हो गया है लेकिन मार्केट डाउन है। अब आप ये देख लें कि ये सर्वर मार्केट में क्रिकेट खेला जा रहा है। जनाब, ये कोई गली के बच्चे नहीं है, वो नौजवान नहीं है जो क्रिकेट वगैरह आपको ग्राउंड में खेलते हुए नजर आते हैं, बल्कि ये सर्वर मार्केट में हम खड़े हैं। होलसेल मार्केट है और कोई ख़रीदार नहीं है, और वो जो सारे दुकानदार हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं। वैसे एक लिहाज से तो अच्छा हो गया ना कि खान साहब की क्रिकेट तो मशहूर हो गई। इधर काम काज नहीं है, ये लोग क्रिकेट खेल रहे, बच्चे तो नहीं है, सब बड़े बाल बच्चेदार लोग हैं। अच्छा, काम काज सारे बाल बच्चेदार हैं? जी, ये भी बाल बच्चेदार है, ये भी बाल बच्चेदार है, बड़े छोटे तो इसमें कोई नहीं, ये भी शादीशुदा है, मैं भी शादीशुदा हूँ, वो भी शादीशुदा है, बच्चों वाले। तो सुबह से अब तक कितने ग्राहक आए हैं? तो कोई आ जाए तो सौदा देंगे, सौदा गाहक नहीं आता तो इसलिए लड़के बाहर निकले हुए खेलने के। एक बात करूँ तो सुबह से अब तक कितने ग्राहक आए हैं? ये एक गाहक 2 आगे हो गए, 1 या 2 बंदे आ जाएंगे। आपने तो बड़ा मुश्किल में हमें डाल दिया। आप कह रहे हो कि आपके पास ग्राहक ही नहीं आ रहा। तो गाहक नहीं आ रहा ना मैडम, देखेंगे ये दुकान है, अभी तो आपको गाहक नजर आ रहा है, ये दुकान के मालिक है, हम मजदूर है, ये इसका मजदूर है, 2-3 लड़के हम इधर खेल रहे हैं, वो हमारे सदर साहब है, आपसे पहले बात हो चुकी है। इस और दुकानें देखे, वो सब देखो बाहर निकले हुए, ये साथ वाली दुकान देखे, सब लोग बाहर। अच्छा, एक बात है, जो दुकानदार है उसका तो फिर भी कुछ ना कुछ बिक जाता होगा, आप मजदूर लोगों का तो फिर क्या बना? बस अल्लाह तो है ना, अल्लाह है ना, हम तो सुबह अल्लाह के आसरे पे आते हैं, बस अल्लाह मददगार है। ऐसे कितना कमा के ले जाते हैं दिन में? मैं तो इधर मजदूर हूँ, पानी लाता हूँ बाहर से, लोगों को पानी देता हूँ, तो ये 150-200 रुपये मेरा हो जाता है यहाँ पे जी। तो गुजारा कैसे होता है? तो बस करते हैं गुजारे, इधर कभी एक के साथ किसी का माल आ जाता है, वो गाड़ी खाली कर लेते हैं, कभी उधर मार्केट में काम करते हैं, कभी उधर करते हैं, घर के खर्च चलाने के लिए, छोटे छोटे बच्चे। आपने सुना इस सारी सिचुएशन का, ये मार्केट के सारे ताजिर कहें, दुकानदार कहें, या फिर उनके साथ काम करने वाले मजदूर हैं जो इस वक्त क्रिकेट यहाँ पर खेल रहे थे। आपने देखा। आप अपना खेल फिर जारी रखें, हम अपने प्रोग्राम की क्लोजिंग करते हैं। और हमने आपकी आज के प्रोग्राम में एक आम आदमी से भी बात कराई, यहाँ एक छोटे ताजिर से भी आपकी बात कराई, एक मजदूर से भी बात कराई, लेकिन जो सिचुएशन इस वक्त हमारे सामने है वो हमने आपके सामने रखी है। अब आप देख लें कि लोग इस वक्त किस मुश्किल में हैं, और उनके लिए आटा ख़रीदना भी इस वक्त मुश्किल हो गया है। जो रोटी एक बुनियादी चीज़ है कि जो कि रोज़ाना तो खानी ही पड़ती है, तो वो आटा ख़रीदना भी उनके लिए मुश्किल हो गया। हम सब्ज़ी मार्केट में गए, वहाँ भी आपने यही सिचुएशन देखी कि लोग जो हैं वो रो रहे थे। वो अम्मा जी वहाँ से गुज़र रही थी, वो एकदम एक किस्म का रो ही पड़ी कि कुछ भी नहीं है हमारे पास कि हम क्या करें, ज़िंदगी कैसे गुजारें। तो ये सारी सिचुएशन थी। हमारी तरफ से इतना ही। फरजाना अली को ब्यूरो रिपोर्ट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।